Good morning, students. It is Nabiullah Siddiqui. I am making this video for class 12th informatics practices. In the previous video, I told you all about splitting array and combining the array using the functions hstack, vstack, and concatenate for combining an array, and hsplit, vsplit, and split functions for splitting the arrays. These functions were to extract the contiguous elements from the array. Now in this video I will be telling you about extracting the elements, non-contiguous element, using extract function. After that I will be dealing with arithmetics with 2D arrays, and then the application of arrays using the functions cov, core, coef, that is correlation coefficient, and polyfit function. So let's start. The extract function. So you can extract non-contiguous subset of an NumPy array by applying the condition on NumPy array. The specified condition will be applied to each and every element present in the array, and the element meeting the criteria will be the part of the subset returned from this. So for this, what we are having NumPy extract function and the condition and the array. This is the array to be extracted. इस array से हमें एलिमेंट निकालने हैं, इस कंडीशन के बिहाफ पे एलिमेंट निकालने हैं, और एलिमेंट निकालने के लिए एक्सट्रैक्ट फंक्शन हम यूज़ करेंगे. तो कंडीशन हम लोग एनडी एरे की कंडीशन बनाएंगे, कंडीशन बना करके हम लोग एरे को एक्सट्रैक्ट करेंगे. द एक्सट्रैक्ट always returns the element in the given array fulfill the criteria. Yes. Now how it is working या how it works, कैसे काम करता है. सो इसके लिए हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एक ARY नाम की एरे क्रिएट की थी विद द सेम एरे. यही सेम एरे को यहाँ पे रेफ़र कर रहे हैं. एंड द कंडीशन इज़, क्या कंडीशन यहाँ पे हम लोगों ने बनाई है, ये एरे है ARY हैविंग द एलिमेंट फ्रॉम 0 to 23 into 4 rows and 6 columns, and the condition is equal to np.mod. mod फंक्शन यूज़ कर रहे हैं. mod क्या होता है? mod होता है जो रिमाइंडर देता है. हम ARY को डिवाइड करेंगे, हर एक एलिमेंट को डिवाइड करेंगे 5 से, और अगर उसका mod 0 के इक्वल है, मतलब नंबर 5 से डिविजिबल है, तो 0 यहाँ पे डिविजिबल होगा, 5 डिविजिबल होगा, 10 डिविजिबल होगा, 15 और 20. बाकी कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है. तो कंडीशन ट्रू होगी 0 के लिए, 5 के लिए, 10, 15 एंड 20 के लिए, जो कि यहाँ पे दिखाई गई है. ट्रू, this is true, and these are true conditions. So in true conditions के बिहाफ पे हमें डेटा मिलेगा, मतलब 0, 5, 10, 15 and 20. So here the output of the array is, extract function is np.extract, कंडीशन हमने पास कर दी, कंडीशन एंड द एरे, जिस एरे से हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है एरे. So the result is 0, 5, 10, 20, 0, 5, 10, 15 and 20. हम लोग को अगर इस फंक्शन से डेटा स्टोर करना चाहे तो हम डेटा स्टोर भी कर सकते हैं किसी दूसरे वेरिएबल में, जो कि यहाँ किया गया. res इज इक्वल टू np.extract कंडीशन एंड द एरे, और res में सेम डेटा हमारा स्टोर होके आ रहा है. ठीक है. अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट. ओके, अर्थमेटिक्स. तो क्या अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर. ओके, द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर plus, minus, divide, into and modulus, add, subtract, multiply, divide, calculate, remainder. Okay, so for this what we are going to write, simply first array plus a number or the second array, second first array minus number or
means directly you can subtract or add or multiply a number to the array, or you can multiply two arrays. For this the array must be compatible for the operations यूजिंग numpy फंक्शन. सेम काम को हम लोग numpy फंक्शन के हेल्प से भी कर सकते हैं. अगर प्लस लिखा है तो प्लस ऑपरेटर लगाया है, प्लस नहीं लिख रहे हैं तो numpy फंक्शन ऐड यूज़ कर सकते हैं. सिमिलरली देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ फंक्शंस दिए गए हुए हैं. numpy देखिए, numpy डॉट ऐड nd array कॉमा अ नंबर और सेकेंड एंड एरे. मीन्स फर्स्ट एरे को सेकेंड एरे के साथ ऐड करना है तो ऐड फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, या फर्स्ट एरे में कोई सेकेंड नंबर ऐड करना है तो उस नंबर को डायरेक्टली कॉमा के बाद लिख के ऐड कर सकते हैं. जो भी नंबर लिखेंगे वो नंबर पूरी एरे में ऐड होगा. अभी इसके नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग. सो ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, mod and remainder. Mod and remainder are the same function, only the name is different. We can say mod is alias for remainder or remainder is alias for mod. So एग्जाम्पल्स देखते हैं. Okay, consider the array ARY. It is ARY having element 0, 1, 2, 3. Okay, 0, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 24. Okay. It is skipping a number. Okay. Now here the example. Add function. Add function आप कैसे ऐड कर रहे हैं? So ARY plus 0.3. So ARY में नंबर्स थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23 तक. तो यहाँ पे नंबर्स को इसी तरह से लिया गया हुआ है तो उससे 0.3 ऐड हो जाएगा. 0 प्लस 0.3 0.3, 1 प्लस 0.3 1.3. इस तरह से यहाँ पे तमाम ये नंबर्स ऐड हो गए हैं. ये 0.3 एरे के हर एक एलिमेंट के साथ ऐड होकर के आ गया है जो कि हमारी एरे में ऐड हो रहा है. और इसी ऐड को करने के लिए numpy फंक्शन है np डॉट ऐड ARY, 0.3 दोनों सेम रिजल्ट देते हैं. अगर एक नंबर आप ऐड कर रहे हैं स्केलर क्वांटिटी, तो अगर आप दूसरी एरे ऐड कर रहे हैं तो दूसरी एरे में क्या है? दूसरी एरे हमारी है न्यू नाम की एरे है जिसे ऑलरेडी क्रिएट किया गया हुआ है जो प्रीवियस पेज पे थी. और उसमें सारे एलिमेंट्स क्या थे? उसमें सारे एलिमेंट्स थे हमारे 2.1 और वो सारे 2.1 हमारे इन पुरानी वैल्यूज़ के साथ सम होकर के आ रहे हैं. और यही काम यहाँ नीचे भी हो रहा है. सब्सट्रैक्ट में सिमिलरली मल्टीप्लाई और डिवाइड और मॉडुलस काम करेगा यहाँ. तो ये हमारा अर्थमेटिक्स है जो कि काम करता है एरेस के साथ में. नाउ द फंक्शंस ऑफ एरे. व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस, applications in fact. So numpy array have found their applications in numerous fields and purposes. अलग अलग पर्पज़ और अलग फील्ड के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं. So in this section we are going to discuss 3 applications of numpy array in calculating covariance, correlation and linear regression. So for calculating the covariance function is COV. For correlation function is CORCOEF, that is correlation coefficient. And for linear regression the function is given as polyfit. So next is covariance. So covariance है क्या? What is covariance? Covariance is how similar varying two data sets are. दो data sets कितने similar हैं ये बताता है. तो ये कितने similar नहीं है. High positive covariance between two data set means very strongly similar. Highly negative covariance means very highly dissimilar. कैसे इस फंक्शन को यूज़ करते हैं COV फंक्शन देखते हैं नेक्स्ट पेज में. ओके, हियर इट इज import numpy as np. Variable a is an array, np array 1 2 3 4 5. b is also an array, np dot array
3 4 0 -1 -3. And COV_mat is a variable where we are storing the covariance of A and B using the function COV. So np.cov, first array, second array, both the array have been passed, and it will return a 2 cross 2 matrix because we were having two variables A and B, दो वेरिएबल हैं तो 2 क्रॉस 2 आएगी, 3 होंगे तो 3 क्रॉस 3 आएगा रिजल्टेंट, 4 होंगे तो 4 क्रॉस 4 आएगा रिजल्टेंट. तो हमें रिजल्टेंट इसी तरह से मिलेगा. अब इस रिजल्टेंट में हमें देखना है कि दो डेटा सेट हमारे कितने वेरिएंस हैं. तो ये हमारा रिपोर्ट बन करके आ रहा है. इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पर 2.5 -4.25 -4.25 एंड 8.3. तो ये क्या क्या वैल्यूज़ आती हैं. ये है हमारी ये वाली वैल्यू 0 0, दैट इज़ 0 0. ये है कोवेरिएंस मैट 0,1, ये है 0,1, और ये वाली है 1,0 और ये है 1,1. सो यहाँ पर VAR लिखा है, A का वेरिएंस और B का वेरिएंस लास्ट में, और बीच के जो दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये दोनों में से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होती है. कोवेरिएंस ऑफ A, B, कोवेरिएंस ऑफ B, A, बोथ आर द सेम. सो if we want to print, we can print these value, this co_mat. What is correlation? Correlation is nothing but it is normalized covariance. Correlation is normalized covariance. So normalize means अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो ये -1 देगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है कोवेरिएंस की तो ये 1 देगा, +1. सिमिलर फंक्शन है, सिमिलरली यूज़ करेंगे, बस फंक्शन चेंज होगा. इंस्टेड ऑफ यूजिंग COV फंक्शन वी विल यूज CORR तो यहाँ पर भी सेम है. A वेरिएबल और B वेरिएबल बना लिए हैं, दो बना करके इनका कोरिलेशन मैट्रिक्स निकाल रहे हैं. तो कोरिलेशन मैट्रिक्स निकालने के लिए हमने यूज़ किया कोरिलेशन मैट्रिक्स इज इक्वल टू np.corr_coef_ab एंड सिमिलरली 0 1 और 1 0 इंडेक्स के वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर हमको वैल्यू मिल जाएगी जो कि हमारा कोरिलेशन कहलाता है. नेक्स्ट इज लीनियर रिग्रेशन. व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन? अब लीनियर रिग्रेशन एक मैथमेटिकल डेटा साइंस का टर्म है जिस टर्म को हम लोग डेटा साइंस या डेटा एनालाइज के लिए यूज़ करते हैं. तो कोई एक पर्टिकुलर पाथ ऐसा होता है जो सभी पाथवे को जोड़ता हुआ चलता है, तो उस पाथ की बात यहाँ पे हो रही है. ये एक एग्जांपल है कि शहर में बहुत सारी गलियों को जोड़ने की एक रोड होती है. तो ये मेन रोड की बात हो रही है कि जिस रूट से आप ज़्यादातर गलियों को जोड़ सकते हैं, फॉर एग्जांपल. ओके, सो अब यहाँ पर डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन क्या है? Linear regression is the method used to find the relationship between dependent variable and the set of independent variable. इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारी गलियां हो गई हैं, उनके लिए एक सेट कौन सा है जो डिपेंडेंट है, वो है रोड. तो इस काम को करने के लिए फंक्शन कौन सा दिया गया हुआ है? numpy provides a function polyfit find out the linear regression. How it works? It works similar, numpy.polyfit x, y and degree. तो कितने डिग्री स्पेसिफाई करनी पड़ती है. डिग्री बेसिकली यहाँ पर हमें देखनी पड़ेगी क्योंकि पॉलिनोमियल्स, अगर आप मैथमेटिक्स का टर्म है, अगर हम ज़्यादा फैमिलियर उससे नहीं है तो हम लोगों को डिग्री स्पेसिफाई करने की कोई ख़ास ऐसी ज़रूरत नहीं है. हमें मालूम है डिग्री 1 2 कोई डिग्री हम लोग डाल सकते हैं, तो उस डिग्री को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे. और एक्स वाई दो हमारे एरे हैं. ओके, तो इस तरह से ये काम करेगा. इन फंक्शंस को हमें देखना है कि कौन कौन से हमारे एप्लीकेशंस एरे के हैं जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, पाइथन नमपाई एरेज. ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, और इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो रहा है. इसके कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, so we are having some numericals to be solved in the class only, and here we will practice some questions like creating an array, extracting element from array, H split, V split, H stack and V stack. Okay, thank you and stay safe, stay home, follow the social distancing, wash your hand frequently,
at least 20 seconds. Okay, thank you, thanks for watching.